So today we are going to do about limitation of auto reaction. In this limitation of auto reaction मैंने बोर्ड में एक स्ट्रक्चर के मैंने एक रिएक्शन का उस रिएक्शन के द्वारा मैं आपको लिमिटेशन ऑफ auto reaction की हर एक रिएक्शन बनाने जाऊंगा। तो सबसे पहले आप इसको हटाते हुए और इसको अच्छे से नोटिस कीजिए। चलिए मैं फिर से लिख दूंगा आपको अच्छे से एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आप सही जगह पे आएंगे, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन का जरूरत है हाइड्रोकार्बन का, वही देने का कोशिश कर रहे हैं आपको। ओके, तो देखो what I am trying to say you. This is R and halogen, sorry, an alkyl halide which is reacted with an halogen plus of an alkyl halide R dash which is reacted with the same halogen X plus of 2Na. According to which reaction the reagent is Na and ether. Understand? Now it is reacted with the ether reagent and it should be dry nature. The nature of the ether is dry. ओके, आफ्टर दैट ये क्या फॉर्म करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, ये थ्री डिफरेंट अल्कीन फॉर्म करता है। तो थ्री डिफरेंट अल्कीन में पहला अल्कीन होगा R बॉन्ड R, दूसरा होगा R डैश बॉन्ड R डैश प्लस ऑफ तीसरा होगा R बॉन्ड R डैश और चौथा होगा दैट इज एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट 2NAX। अंडरस्टैंड? So this is actually we have to say in present of reaction. अब मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको। That is CH3 bond I plus of C2H5 bond I plus of 2Na in the presence of dry ether EG form CH3 bond CH3 plus of C2H5 bond C2H5 plus of CH3 bond C2H5 plus of 2Na5. Understand? Yeah, understand. I'm supposed to think that you have all understand about the reaction of limitation in wood reaction. अब मैं क्या करने जाऊंगा? अब मैं आपको एक रीजन बताऊंगा, एक क्वेश्चन बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन ऑफ वुड रिएक्शन में पढ़ना जरूरी बनता है हमारे लिए। And that is actually very important question. It comes previously in under IT JEE NEET. J means wrong and NEET. तीनों एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन के बारे में। मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, why methane is not formed, why methane is not formed by wood reaction. Tell me why methane is not formed. It is very important, understand it very carefully, that methane is not formed in a wood reaction. Why? तो देखो मीथेन हमारा क्यों नहीं फॉर्म होता है वुड रिएक्शन में? पहला बात, फॉर मीथेन का कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। इफ वी राइट सपोज टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, इट विल बी CH4 मीथेन। अब इस CH4 में कितना कार्बन है? वन कार्बन है, सिंगल कार्बन व्हिच इज एन ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, एंड फॉर एन ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म अ कंपाउंड वी नीड टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड। हाउ मेनी अल्काइल हैलाइड वी नीड? Two different alkyl halide. So we need two different alkyl halide. And how many product are formed? Actually, generally we see that is a three different alkene is formed. Alkene is formed. And it is difficult to separate out that particular compound of odd number from the three different alkene. That is why methane is not formed by auto reaction. Understand? मैं फिर बोलता हूँ आपको ये वाला बात, that why methane is not formed by auto reaction, as because methane containing an odd number of carbon atom, and for auto reaction we know two different alkyl halide is required. Two different alkyl halide will give a product of three different
alkene, and it is difficult to separate that particular odd number carbon atom compound in that alkene. That is why methane is not formed by order reaction. Understand very carefully. I'm understanding you, and it is supposed to ask in your exam. Very, very important. Okay, very, very important. This is. ओके, अब आगे बढ़ते ही आगे बढ़ने की एक बहुत अच्छा चीज बताएंगे आपको। Write down property of alkene. Property of alkene का property है। पहला मैं कुछ property लिख रहा हूँ, उसे हटन पार्ट सुन रही है, आपको याद करना पड़ेगा property को, because ये सब property आपकी कंपटीशन लेवल पे पूछा जाता है। आईटी के अंदर, जेई के अंदर, मेंस के अंदर, नीट के अंदर पूछा जाता है ये सब रिएक्शन से क्वेश्चन, तो डायरेक्ट उसको याद कर लीजिएगा। ये property of alkene, property of alkene। पहला property लिखो, that is a oxidation property, और ऑक्सीडेशन में रिएक्शन लिखो पहला, that is a CH4 with the presence of copper as a reagent at 523 Kelvin and 100 atm temperature, वो क्या बनता है, ये बनाता है CH3OH। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो CH4 अंडा का, सॉरी अब थोड़ा दूसरा लेते हैं, that is CH3 bond CH3 when reacted under the reagent of molybdenum oxide MO2O3, molybdenum oxide, it will form CH3 bond CHO, that is what it will actually form an aldehyde product. Next, CH3, sorry, CH4 again, in the presence of same reagent, that is form 4CHO. Next, it will be CH3 bond CH3. In the presence of CH3, CW to form, and Mn to form CH3 COOH. Okay, and another one, that is reaction with steam, ये सब ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विद स्टीम, that is reaction with steam। Reaction with steam। So reaction with the steam क्या बताता है, that is a CH4 plus of H2 in the formation of nickel catalyst energy, ये फॉर्म करता है CO plus of 3H2। Understand? Okay? आपको लग रहा है मैं देख देख के क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपको याद करना पड़ेगा, और मैं याद करके थक चुका हूँ, इसलिए मुझे और अच्छा ही लग रहा है, इसलिए मैंने देख लिखा। अब नेक्स्ट जो पढ़ाऊंगा वो मैं खुद लिखूंगा, आपको हर एक चीज सुनाऊंगा इसके बारे में। तो नेक्स्ट लिखो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन के बारे में लिखो, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। What do you mean by aromatization reaction? पहले मैं रिएक्शन लिखता हूँ, ये एक स्ट्रक्चर है बेंजीन, ये बेंजीन फॉर्म करेगा कैसे, मीन्स मुझे बेंजीन को फॉर्म कराना है। इस बेंजीन फॉर्म होने की प्रॉपर्टी देखो, दैट इज एन हेक्सेन। एन हेक्सेन का मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखूंगा अगर, तो क्या बनता है 1 2 3 4 5 6, this is the bond line structure of N-hexane.
and it will form benzene. Under what condition? There are certain conditions to be maintained. 773 Kelvin चाहिए हमको temperature and 10 to 20 atm pressure. रेज कैटालिस्ट चाहिए वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटालिस्ट B2O5 Cr2O3 and AlCl3 vanadium pentoxide chromium trioxide and AlCl3 it will form N-hexane to form a benzene structure under 773 Kelvin and 10 to 20 atm pressure and these two catalysts to form benzene. Another reaction है which is also an aromatization reaction उसमें क्या करेंगे उसमें हम लिखेंगे N-heptane. ये क्या है ये है N-heptane और क्या बनता है N-heptane will form what it will form ये बनेगा ओके इसका नाम है टोल्यूइन या मिथाइल बेंजीन इट इज कॉल्ड टोल्यूइन और मिथाइल बेंजीन टोल्यूइन और मिथाइल बेंजीन under same temperature and pressure 773 Kelvin 10 to 20 atm pressure and another thing that is V2O5 catalyst Cr2O3 catalyst. तो इन दोनों रिएक्शन को याद रखना इफ आपको क्वेश्चन में आंसर होता है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन लिखने के लिए अंडरस्टैंड अब कुछ डेफिनेशन है मैंने देख लेता हूं हां next what you have to study it is pyrolysis of alkene that is breaking down of bigger alkene to a smaller alkene is called pyrolysis ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है नेक्स्ट में लिखूंगा that is pyrolysis reaction pyrolysis क्या होता है pyrolysis पे that is bigger alkene to form smaller alkene okay bigger alkene smaller alkene में कन्वर्ट होगा पहला सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखो नतीजे C12H26 C12H26 in the presence of only heat and very important is this reaction an endothermic reaction or exothermic reaction in pyrolysis you will comment me whether the pyrolysis reaction is endothermic reaction or exothermic reaction I think you are right it will be an endothermic reaction ये लास्ट ईयर जेई मेंस में पूछा गया था स्टेट pyrolysis reaction is an endothermic exothermic both endo exo or none of this ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर जेई मेंस में it will form C5H10 and C7H12 okay Satpashimaru the Oshikanubaru take it I think it will be 16 C7H16 yes C7H16 you are C7H16 only okay understand pyrolysis next pyrolysis की बात क्या पढ़ना है देखते थोड़ा सा अब डायरेक्टली मैं आपको क्या पढ़ाने जाऊंगा अच्छा डायरेक्टली मैं आपको कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस पढ़ाने जाऊंगा कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस वो क्या होता है देखते अच्छे से व्हाट यू मीन बाय कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इलेक्ट्रोड का नाम बहुत अच्छे से याद रखना दैट इज पीटी इलेक्ट्रोड पीटी इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है और मैं रिएक्शन लिख रहा हूं अच्छे से देखिएगा रिएक्शन में बहुत सारा प्रोडक्ट होगा कंफ्यूज मत होइएगा RCWNA plus of what K that is sorry H2O in the presence of PT electrode
to form R bond R plus of NaOH plus of CO2 plus of H2। ओके, तो ये होता है रिएक्शन ऑफ कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का स्ट्रक्चर। अच्छे से स्ट्रक्चर को देखो, मैं बार बार बोलता हूँ किसी भी रिएक्शन करने से पहले उसकी स्ट्रक्चर को अच्छे से देखना जरूरी बनता है हमारे लिए। मैंने क्या किया है, एक अल्काइल हैलाइड उसको रिएक्शन करवाया गया है CWNA के साथ, दैट इज सोडियम कार्बोनेट का सॉल्ट की सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड plus of H2O in the presence of PD electrode to form R bond R plus of NaOH plus of CO2 plus of H2। इसमें से प्राइमरी प्रोडक्ट है that is R bond R और सेकेंडरी प्रोडक्ट है NaOH CO2 and H2O। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। डेफिनेशन आप बुक से पढ़ सकते हैं बट रिएक्शन आप बुक से समझ नहीं सकते हैं। सो डेफिनेशन में मैं ज्यादा एम्फसाइज नहीं करूंगा बट मैं रिएक्शन के बारे में बहुत एम्फसाइज करूंगा आपको। तो लिखिए CH3 bond CH2 bond CWNA reacted with what? H2O in the presence of PT electrode। ये फॉर्म करेगा क्या? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 प्लस ऑफ NaOH प्लस ऑफ H2 प्लस ऑफ CO2। अंडरस्टैंड? इफ आपको स्ट्रक्चर समझ में आता है रिएक्शन को तो आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस रिएक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट आप करेंगे खुद। ओके, थोड़ा देख लेता हूँ क्या क्या क्वेश्चन था मेरे लिए। हाँ, अच्छा मान लीजिएगा ये सोडियम सॉल्ट या कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ही और नहीं तो ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। इधर इट विल बी CWNE और इट विल बी CWK। ओके, पोटेशियम सॉल्ट भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे तो डेफिनेशन में लिख सुना देता हूँ। On passing electric current through an aqueous solution of sodium or potassium salt of carboxylic acid, alkane and alkyne is obtained. In the reaction, intermediate free radical is obtained. During this process, alkene and CO2 are produced at the anode, but alkyl are produced at the cathode. Understand? Next, आप एक रिएक्शन करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे। अच्छा ये वाला कीजिए, इसका क्या होगा? अच्छा अब कोलबेस लैबोरेटरी प्रोसेस के अंदर भी आपको नेट का क्वेश्चन देखिए, उन सब क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। ये तो इजी क्वेश्चन है बट हाउ टू टैकल दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज CH2 बॉन्ड CWNE bond CH2 bond CWNE plus of H2O in the presence of PT electrode। इनको कैसे टैकल करेंगे, इसके लिए भी एक रूल है, उस रूल को जानिए। क्या करना पड़ेगा, ये सबसे पहले आप इनको हटाएंगे। इनको हटाने के लिए आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड का एस्टैब्लिशमेंट करना पड़ेगा, बस नथिंग एल्स टू डू। Just only remove this bond and add double bond on the alkane। तो स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और याद रखिएगा ये डबल बॉन्ड कहाँ गिरेगा, ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन अटैच होगा। ओके, अंडरस्टैंड? CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये होगा। नेक्स्ट एक आप रिएक्शन खुद करेंगे। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है साइक्लोहेक्सेन। अगर आप ठीक से सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। CWK bond CWK plus of H2O in the presence of PT electrode, ये क्या बनेगा बताओ?
इफ यू आर थिंकिंग दिस थिंग, अगर आप एक माइंडसेट बना चुके हैं आपके में ब्रेन भी कि इसको कैसे करेंगी, जस्ट रिमूव दिस पार्ट, इस पार्ट को रिमूव करेंगी। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो इसको मानिए दो गवर्नर की दो कार्बन रहेंगी, और कार्बन कार्बन का कितना बैलेंसिंग हुआ है, 1 2 3, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, इन दोनों अल्केन हों या अल्केन का फॉर्मेशन करता है एक्चुअली में। तो अब इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड का एस्टैब्लिशमेंट होगा। मैंने प्रीवियस रिएक्शन में क्या बताया था, CH2 बॉन्ड COONA बॉन्ड CH2 बॉन्ड COONA। आपको वही सोचना है इधर भी, सिर्फ इन पार्ट को ले लेना है और इसकी तरह कंपेयर करके अब रिएक्शन को बताइए और फिर आपको इनसे जोड़ दीजिए पार्ट को, एक कंप्लीट रिएक्शन बन जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं जो मैं लिखने जा रहा हूं। अंडरस्टैंड? आई होप सो यू अंडरस्टैंड कि डबल बॉन्ड जोड़ा गया है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, दोनों के बीच का डबल बॉन्ड और बाकी का सेम, नथिंग एल्स टू डू। वेरी वेरी इजी है, बिलीव मी इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट, राइट डाउन लिमिटेशन ऑफ कोल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। लिमिटेशन ऑफ कोल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में क्या बताया जा रहा है, दैट सेम मीथेन इज नॉट फॉर्म्ड बाय कोल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस आल्सो, that here also methane is not formed by coal-based aerobic process। ये तो और कुछ है क्या बता दीजिए। Because मीथेन सिमिलर कंपाउंड है, दैट इज क्या है मीथेन, मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4, इसमें कार्बन का नंबर 1 है। एंड हमको इधर आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो कोल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस विल गिव यू मिनिमम 2 कार्बन प्रोडक्ट, मिनिमम 2 C कार्बन प्रोडक्ट by coal based electrolytic process। दैट इज मिनिमम 2 कार्बन प्रोडक्ट बनता है, इसलिए यहाँ पे नहीं फॉर्म होगा मीथेन। अंडरस्टैंड? बिकॉज मीथेन एक सिंगल कार्बन कंपाउंड है एंड कोल बेस प्रोसेस फॉर्म मिनिमम 2 कार्बन प्रोडक्ट। Don't be so deep, you have to do certain important things। अच्छा, बहुत कुछ पढ़ना है। Next, write down halogenation of alkane, halogenation of alkane alkyl halide, halogenation of alkyl halide। What is halogenation of alkyl halide? पहले में एक कंपाउंड है CH4, उसको रिएक्शन करवा रहा हो Cl in the presence of H mu under, it will give what, CH3 bond Cl plus HCl। मतलब इस कंपाउंड को भी अगर रिएक्शन करवाता हूँ CH3 bond Cl plus of Cl in the presence of H mu, ये बनेगा CH2 bond Cl2 plus of HCl। लास्ट में मुझे बनाना है CCl4, लास्ट अल्टीमेटली मुझे बनाना है CCl4। ओके, तो कैसे बनेगा, अब ये CH2Cl2 में अगर मैं अनदर टाइम ऑफ रिएक्शन करूंगा उसके क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H mu, ये बन जाएगा CHCl3 प्लस ऑफ HCl। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंसिंग खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर मैं फिर से इसमें क्लोरीन ऐड करता हूं तो ये अल्टीमेटली मेरा प्रोडक्ट बनेगा C bond Cl4 and that I am supposed to write and I have a right to write that will be Cl4 plus of HCl। Understand? This is actually called halogenation of alkyl halide। राइटिंग में मैं चलेगा, राइटिंग बहुत खराब है मुझे पता है, बट ठीक है, समझ आने में बहुत अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, सब ठीक है। देन आप पढ़ने लायक बनेंगे अगर समझ में आता है। नेक्स्ट क्या पढ़ाना है मुझे, अच्छा सिमिलरली आप आयोडीन के साथ भी कर सकते हैं।
थोड़ा सा लिखिए, मैं थोड़ा सा पानी भी करूँ। Similar thing, the reaction you can do with iodine. Just suppose मैंने जो भी reaction करवाया क्लोरीन के साथ, आप उस सेम reaction आयोडीन के साथ भी कर सकते थे। क्या बनता था स्ट्रक्चर? CH4 plus of I2 in the presence of chlorine, sorry, in the presence of H mu। ये रिएक्शन करने से पहले ये रिएक्शन एक irreversible रिएक्शन है। क्या है? एक irreversible रिएक्शन है। सॉरी, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। सॉरी, it is a reversible reaction and that's supposed to be not forming a product of CI4, and for that you need a reagent like concentrated HCl, concentrated H2O3 and concentrated H2SO4. So for the reaction we need concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. Understand these two we need for the reaction. Okay, then you can complete. If you have these two, then you can complete with CI4 like previous one. Okay, homework it is for you. Now we will start our next part. I think that will be preparation of alkene. होना तो चाहिए. Yes, we will write preparation of alkene. Write down preparation of alkene. Preparation of alkene. तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन करने जाएंगे। पहला रिएक्शन क्या कराएंगे? वेट, आप तो कीजिए ना अपना होमवर्क, मिल जाएगा तभी। एक रिएक्शन है ऐसा, दैट विल बी CH2 बॉन्ड Br, बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। अब चेक करके बताइए बैलेंस इधर है क्या नहीं? यस, बैलेंस इज इन द प्रेजेंस ऑफ Zn2। ये फॉर्म करेगा क्या बताओ? ये फॉर्म करेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ऑफ ZnBr2। ओके, तो ये वाला समझ में आया क्या आपको? आई थिंक समझ में आया चाहिए कि मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को रिमूव किया है यहाँ से, और रिमूविंग करने में मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का अनसब्स्टिट्यूट किया है, और इन दोनों का रिएक्शन इससे किया गया है और फॉर्म किया गया है ZnBr2 और CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये सब रिएक्शन कॉपी में याद होना चाहिए, आपको रिएक्शन लिखने देगा। राइट डाउन द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए याद करो, याद करो। Next, आप मुझे बताइए मुझे that what will happen in this reaction. Next reaction आप मुझे करके बताएंगे CH3 bond CH2 bond Cl bond CH2 bond Cl plus of Zn2 in the presence of nothing, in the presence of heat. You have to tell me what is the product of this reaction. So what is the product of this reaction? Tell me the product. Very easy. The product बनेगा, मैं product इधर लिख रहा हूँ A plus B। तो A हो जाएगा मेरा CH3 bond CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ऑफ सॉरी B हो जाएगा मेरा ZnBr2। इसमें से प्राइमरी प्रोडक्ट ये है, इसमें से सेकेंडरी प्रोडक्ट ये है। ओके, अब बात करूंगा नेक्स्ट थिंग, दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड यू हैव टू फॉर्म द अल्कीन। और अल्काइल हैलाइड मुझे लगता है दैट इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। उसको अनदर भी कहा जाता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन।
It is previously called dehydrohalogenation reaction. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चुनना पड़ेगा अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन, और इसका रिएजेंट लिख लेना है, that is KOH, and that should be the nature of the KOH is alkaline KOH is very important. That will be alkaline KOH है। हाँ, ये हो जाएगा अल्कलाइन नहीं, अल्कोहलिक KOH या इथानोलिक KOH। अल्कोहलिक KOH और इथानोलिक भी हो सकता है, और इथानोलिक KOH, और इसके जगह NaOH होगा, इट माइट बी NaOH आल्सो। तो अब मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूं, और आपको नेक्स्ट रिएक्शन खुद करना पड़ेगा। इसका नाम है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, ओके, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, जिसमें इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का रिंगल हो रहा है कंपाउंड से एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन, यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CH3 bond CH2 bond Br plus of KOH in the presence of alcoholic KOH, ALC, alcoholic KOH क्या बनेगा? तो very important things here. You have to identify first of all alpha carbon and beta carbon. यहाँ पे अल्फा कार्बन उसी को कहा जाता है जैसे कार्बन की अटैच किया जाता है हैलोजन से, जैसे कार्बन पे हमने अटैच किया है हैलोजन से, उस कार्बन का नाम है अल्फा कार्बन, और उसकी बाद वाला कंपाउंड कार्बन का नाम है दैट इज बीटा कार्बन। और अब रूल समझो, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन का रिंग बॉन्ड होता है, और अल्फा कार्बन से एक दैट इज हाइड्रोजन का रिंग बॉन्ड होता है। क्या बोला? अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का रिंग बॉन्ड, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिंग बॉन्ड, और डबल बॉन्ड दोनों के बीच में। तो इट सपोज टू बी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके। नेक्स्ट क्या होगा? KBr, और यहाँ पे OH था, एक हाइड्रोजन का रिंगल हुआ है यहाँ से, तो क्या बनेगा? H2O। अंडरस्टैंड? एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस आर माइनर प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट यू हैव टू डू द अनदर रिएक्शन बाय योरसेल्फ ओनली. No one will assist you, no one will help you in the next one reaction. And I will not write the answer of this reaction. CH3 bond CH bond CH3 bond CH2 bond I plus of KOH and क्या बनने जाएगा ये? बताओ क्या होने वाला है? What it will form by this reaction? मैं आपको हिंट दे सकता हूं अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन चुनने के लिए। ये एक अल्फा कार्बन है और ये एक बीटा कार्बन है, बाकी आप खुद से कीजिएगा, आपका होमवर्क है ये वाला। खुद से अभी होमवर्क नहीं, अभी क्लास वर्क। नेक्स्ट, अब मैं कुछ ऐसे रिएक्शन बताने जाऊंगा जहां पे आप अभी नहीं कर पाएंगे, मैं बताऊंगा सबसे पहले। मींस अगर मान लीजिए कार्बन के बीच में आयोडीन ऐसे लगा, इसके बाद कुछ रिएक्शन, इसके बाद कुछ रिएक्शन, क्या करने जाएंगे उसमें? ये तो एक, और उस रिएक्शन को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक सिमेट्रिकल रिएक्शन और एक अनसिमेट्रिकल रिएक्शन, एंड दोनों के लिए दोनों डिफरेंट रूल है। नथिंग व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ आपको हम लोग एक स्टेप पे रिएक्शन भी लगी CH3 bond CH2 bond Br and bond CH3 plus of KOH alk। इस रिएक्शन में बताओ मुझे अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन कौन है? अच्छा, if you are saying this is alpha carbon and this is a beta carbon, or else if you are saying this is beta carbon
or this is an beta carbon. Someone is saying this is beta carbon, someone is saying this is beta carbon. But believe me, I'm telling you, both are beta carbon. Both two are beta carbon, and you have to do reaction to remove the hydrogen from the beta carbon. Anyone, कोई भी एक से कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ये एक असिमेट्रिकल कार्बन है। ये क्या है? इस कार्बन का कंपाउंड क्या है? एक सिमेट्रिकल कार्बन कंपाउंड है ये वाला। बिकॉज यहाँ पे जितना डिवीजन है, यहाँ पे भी उतना ही डिवीजन है। दैट इज व्हाई इट इज अ सिमेट्रिकल कार्बन कंपाउंड, सो यू हैव टू डू एनी वन साइड टू, बट इन अनसिमेट्रिकल यू हैव टू रिएक्ट बोथ with different times, two different time। आपको दोनों से लिखना पड़ेगा और दोनों का रिएक्शन उसमें सबको चुनना ही मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट बाय द वे ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन previous chapter I've done it, that is what is hyper conjugation effect, understand? तो इसका रिएक्शन लिख देता हूं आपके लिए। इसका रिएक्शन हो जाएगा, मैं मानता हूं, मैं इसको मानता हूं बीटा कार्बन, कुछ नहीं मानूंगा, इसको बीटा कार्बन मानता हूं। तो if I'm supposed to do this is A and this is B and this is C, क्या होने वाला है बताओ? ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 प्लस ऑफ KBr plus of H2O, okay? This is the reaction. For symmetrical reaction है, ये क्या है? Symmetrical reaction है। Unsymmetrical वाला आप खुद करेंगे पहले, फिर मैं बताऊंगा। So for an unsymmetrical reaction, understand it very carefully. क्या होगा? CH3 bond CH2 bond CH bond Br and bond CH3 plus of KOH alcoholic, क्या बनेगा ये वाला? बताओ जल्दी से। पहले देखो ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, पहले वो सोचो, उसके बाद उसके हिसाब से रिएक्शन करो। अगर आप सोच सके ये अनसिमेट्रिकल कार्बन कंपाउंड है, वेरी गुड, देन स्टार्ट द रिएक्शन। क्या होगा रिएक्शन में? मैं आपको बता देता हूँ अल्फा और बीटा के बारे में। ये वाला क्या है? अल्फा कार्बन कंपाउंड है, अल्फा कार्बन है कि ये वाला क्या है? बीटा है। ये वाला भी बीटा है, इधर ये वाला भी बीटा है। आपको दोनों रिएक्शन लिखना पड़ेगा, दोनों प्रोडक्ट होगा, उसमें से कुछ चुनना है, वो मेजर माइनर वैल्यू। इसमें से आपको रिएक्शन लिखना है। पहला एक रिएक्शन लिखो, इसके हट से ये तो हट जाएगा। पहला रिएक्शन में क्या लिखोगे? इसको लेके करो एक बार और एक बार इसको रिएक्शन करना। तो ये पहला बार जब कर रहे, जब इसको ले रहे हो तब इसको कांस्टेंट रखो, इसमें जो है वही लिखना। और जब सेकंड टाइम इसको लेके कर रहे हो तब इसको कांस्टेंट रखो, मींस जो है वही लिखना और इसको चेंज करना। ओके, एंड बस आपको ऐसे करना है। ओके, तो अगर आप कर लिए हैं तो कर चुके हैं या कीजिए, मैं थोड़ा बैठता हूँ। आई होप आपने कर लिया होगा। तो मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ क्या होगा रिएक्शन अल्टीमेटली। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 प्लस ये पहला रिएक्शन जिसमें मैंने ये वाला बीटा कंसीडर किया है, अब नेक्स्ट ये वाला बीटा कंसीडर करता हूँ। क्या होगा? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH प्लस ऑफ KBr and a plus of H2। अब यहाँ पे दो रूल है for the identification of major and minor compound। For the identification of major and minor compound, you have to think first of all, if you don't know hyperconjugation effect, what is hyperconjugation effect? अगर पता है तो करिए जल्दी। मेजर माइनर कौन सा? जिसमें hyperconjugation ज्यादा है वो मेजर है, जिसमें कम है वो माइनर प्रोडक्ट है। अगर नहीं पता तो ये सोचिए, poor become more poor and rich became more rich। ओके, तो यहाँ पे पोर कौन है, यहाँ पे रिच कौन है, पहले वो बताइए। जो पोर है वो ज्यादा पोर होगा, मींस वो ज्यादा माइनर होगा। जो मेजर है तो वो ज्यादा मेजर होगा। ओके, तो इसमें से पोर कौन है, मेजर रिच कौन है बताइए।
इन दोनों में से आपको जेई मेन का क्वेश्चन रहेगा, राइट डाउन द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, तब आपको क्या लिखेंगे, और ऑप्शन में दोनों रहेगा, आपको पहचानना है इसमें से पोर कौन है। ये पोर है, ये रिच है, दैट मींस ये वाला मेजर प्रोडक्ट, ये वाला माइनर प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजूगेशन ऑफ द टू सी, देन इट विल बी सेम। तो ये वाला हो गया माइनर प्रोडक्ट और ये वाला हो गया मेजर प्रोडक्ट। ओके, ये मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट। ओके, अंडरस्टैंड। ये है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रो हालोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, अब धमाल होने वाला है, बिकॉज यहाँ तक ये वाला सिंपल बना था, बोर्ड के लिए था, बट अब हो जाएगा कुछ एक ऐसा चीज जिसमें आपको समझ के करना पड़ेगा उन चीजों को, उन चीजें के बारे में पहले बताइए। एक चीज बताइए, एक साइक्लिक कंपाउंड है, मान लीजिए एक साइक्लिक कंपाउंड है, एक साइक्लिक कंपाउंड एक अनसिमेट्रिकल कार्बन कंपाउंड है, एक सिमेट्रिकल कार्बन कंपाउंड है। टेल मी दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप बेसिक कांसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक से पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस इफेक्ट, अगर मान लीजिए तो यहाँ कॉन्जुगेशन, सब में कॉन्जुगेशन सेम है, सब में कॉन्जुगेशन सेम है। अगर कॉन्जुगेशन सेम है मींस वो क्या बन जाएगा, वो एक सिमेट्रिकल कार्बन कंपाउंड है, एंड फॉर सिमेट्रिकल कार्बन कंपाउंड यू कैन राइट ओनली वन, दैट इज एनफ, दैट इज सफिशिएंट। सो दैट इज व्हाई टू डू नाउ ये वाला असाइनमेंट के बाद आप ये वाला नेक्स्ट देखिए। हम्म 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 बताइए, tell me this one, how you will do this thing. This is your question asked in JEE or NEET, whatever. This type of question पूछेगा, not the previous one. आप बताइए इस रिएक्शन कैसे करेंगे, ये वाला रिएक्शन के लिए ये सबसे पहले इस रिएक्शन को करने के लिए अल्फा और बीटा का आइडेंटिफिकेशन कीजिए। जो ब्रोमीन से अटैच वाला कार्बन है वो अल्फा है और उसके बगल वाले दोनों कार्बन बीटा हैं, कोई भी एक चुनिए और उसके अंदर रिएक्शन कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तोड़ के कार्बन लिखते हुए हर एक कॉर्नर पे बैलेंस डेवलप करते हुए हाइड्रोजन को फिलअप करते हुए बाद में रिएक्शन कीजिए। अंडरस्टैंड? नाउ डू। I want to see what you have to do and what you have understand from this all thing. Apart from this, you have to understand focused mentality development is very important. To develop your mindset for this reaction, I think you have already done this reaction. So I'm starting this reaction for you. मैं आपको एकदम बेसिक समझा रहा हूँ, एकदम बेसिक समझ इसका। ये कार्बन यहाँ पे कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन है। अब तीनों कार्बन का वैलेंस जब कितना बदलो, एक दो तीन मीन्स यहाँ पे वैलेंस कर लेंगे, एक हाइड्रोजन चढ़ा जाएगा, एक दो CH2, एक दो तीन CH। ओके, अगर मैं कंसिडर करता हूँ ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा, तो क्या था, बीटा से हाइड्रोजन का रिंग बंद होगा, अल्फा से हाइड्रोजन का रिंग बंद होता है। तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन विल बी समथिंग लाइक दैट। ये रिएक्शन हो जाएगा कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। ओके, कमेंट में इसका नेम बताइएगा। व्हाट इज द IUPAC नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड, टेल मी इन कमेंट। ओके, और नहीं तो क्या हो सकता है, अनदर वन, या तो ये होगा और क्या होगा, और अगर आप सोचेंगे और अगर सोच सकते हैं अच्छे से तो आपका रिएक्शन कंप्लीट होना चाहिए। ओके ओके ओके, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। और या तो ये या तो ये, अंडरस्टैंड?
I hope you understand this all thing very carefully and understanding you. ये तो बेसिक है। जब मैं आपको एक एक चीज का मिक्सचर करते हुए रिएक्शन बताऊंगा तब मजा आएगा मुझे भी और आपको भी। और वो स्कूल में जा करते बिलीव मी उसका क्वेश्चन मैं अभी आपको कराने चाहूंगा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट टॉपिक इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सिमिलर थिंग है जिसमें मैं हैलोजन का रिमूवल कर रहा हूँ इसमें अल्कोहल का रिमूवल करूंगा। इसका नाम चेंज करते हुए मैं लिख रहा हूँ डिहाइड्रेशन डिहाइड्रो हैलोजिनेशन से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो मैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करने जा रहा हूँ। क्या हो जाएगा? सिंपल है। जोड़ का क्या है KOH से similar you have to do with and replace with OH same thing nothing else. Similar you have to do with OH as whatever you have done with KOH only. तो एक रिएक्शन लिखो CH3 bond CH2 bond CH2 bond OH. Now do similar thing यहाँ पे भी सेम है अल्फा कार्बन बीटा कार्बन सेम है। इसका क्या होगा? ये एक अल्फा है ये एक बीटा है तो अल्फा बीटा में सेम होगा कंपाउंड बनेगा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अंडरस्टैंड दिस इज योर कंपाउंड और यहाँ पे भी सेम रिलेशन है KOH अल्कोहलिक क्या बन जाएगा नेक्स्ट KOH प्लस ऑफ H2O। ओके अब मतलब क्या करेंगे? चलिए अनसिमेट्रिक वाला करो आप छोड़ो। अनसिमेट्रिक वाला खुद करना मैंने बताऊंगा आपको। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 नहीं बॉन्ड CH के साथ OH and bond CH3 in the presence of KOH। sorry यहाँ पे कुछ नहीं क्या फर्क करेगा बताओ? मैं इतना बता सकता हूँ अल्फा बीटा ये अल्फा ये बीटा अगर लिख लिए तो बहुत बड़े नहीं लिखे तो देखिए इतना टाइम नहीं मेरे पास। If you are finding this thing is right, otherwise you are wrong. Okay? खुद से कीजिए मेरा वर्तन बदलिए। Now एक क्वेश्चन देखिए जाऊंगा होमवर्क। So next we will start property of alkane. Next we will start property relating alkane. Alkane का property next दिन start करेंगे. Okay? Bye for now. Thank you और पढ़ते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। होमवर्क का कमेंट में होमवर्क का क्वेश्चन कैसा आंसर लिखिए। ओके? आइए किसी दिन बताइएगा।